again I extend a warm welcome to the speaker, chairpersons, and the distinguished participant on this occasion. It is a great honor and privilege for us in this call, not organize and this program. I think so we have struggled what to be articulate properly, what for this occasion, and we have collectively decided with the team. In fact, we would like today to celebrate the book. It is very voluminous, very relevant, very historical, and in my impression, it may be possible. I'm not the expert of this area. It is very technical and philosophical context of the book. But I take the opportunity to share with august audience. It is a classic work. I'm correct, sir? Absolutely. Yes. Yeah. Before inviting today's chief guest to reflect and deliver the talk in interesting and lucid manner on the book, I would like to briefly share a few words how the book emerged and came out in the public domain. In fact, I have been very privileged to have a long association to the chief guest, Sri Neeraj Kumar ji, not only in a personal level, but also in a professional manner. And since I think so, more than 6-7 years ago, in fact, he had started the work. And then, in fact, he has shared about the context and the contour of this book, how, in fact, he planned out to bring about this book in the public domain, the form of this set. I could not get the point and could not get the understand. But in fact, in this regard, just there are 3 specific points. He has spent more than 6 years to translate from Sanskrit to English, or not it is just translation. In fact, to develop a commentary and context of the book, and it is also very important about the book to develop a brief and summary how to understand this book. In the recent month, I think so. Not only this book get attention in academic domain, but also in a media and the public domain. And recently, in fact, I came across a long interview around the book and the author both. I think so. It was appeared in Link magazine. Week. Sorry, I'm very sorry. A Week magazine. And my office will forward the link of the Week magazine if you are interested to kindly to overview. The book, of course, it is a context to give a context of the philosophical and literary tradition of the particular time, but also this book will great relevance in the context of the relationship between particularly the which is called in India the soft diplomacy, and to develop a strengthen the relationship between the Southeast Asia and Asia, Tibet and India as well. And well, at the end, I think so, in the recent years, since 2017, we have developed one of the key program on Bodhgaya and Buddhism, because there are 2 areas which we have been working since 2000. One of the key area is school education, and another key area which we have been developing the program on governance and development. In this area, we are very fortunate that there are 3 key pillars who are present today. One of the key pillars to develop the program with Neeraj ji. We are very fortunate receiving since beginning support for this program from today's chairperson, Dr. Burma, and as well as one of the key pillars always, in fact, associate with Dr. Vijay Kumar Mishra, associate professor in Indira Gandhi National Center for Art. So, without taking the time between the august audience and the author of the book, I would like to invite to the author of the book to kindly reflect, observe, comment, and deliver the talk on the classic work, the Kal Chakra Tantra. So I would like to invite माननीय
चेयर पर्सन अजय वर्मा सर, परम मित्र संजय जी व तमाम उपस्थित मित्रगण, यह एक सुखद संयोग है कि देश का सोसाइटी के इस मंच पर हम लोग कालचक्र तंत्र पर शुरुआती चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। देश काल यानी स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम, यह अवधारणा लेकर जो संजय जी ने इस सोसाइटी को आगे बढ़ाया विगत कई दशकों से, और कई तरह के बौद्धिक विमर्श को जन्म भी दिया है। उसी तरह कालचक्र तंत्र भी स्पेस टाइम कंटिन्यूम पर ही एक विस्मयकारी बोध उत्पन्न करता है। मैं पहले इस तंत्र के बारे में व्याप्त कुछ भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ। तंत्र किसी स्ट्रक्चर के बुनने को कहते हैं। यह एक सिस्टम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। जैसे अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया गया कि तंत्र बेसिकली एक सिस्टेमिक नॉलेज है। जैसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में सरकारी तंत्र, प्रजातंत्र, गणतंत्र, तो तंत्र का मतलब वह है कि एक स्ट्रक्चर्ड जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो इस आप चूँकि ज्ञान के एप्लीकेशन पे तंत्र जोर देता है, अतः इसका एम्पिरिसिज्म से भी गहन संबंध है। यह केवल सैद्धांतिक चीज नहीं है, यह प्रयोगात्मक व वैज्ञानिक ज्ञान प्रक्रिया है। कालचक्र तंत्र के बारे में विगत कुछ वर्षों से एक अवधारणा बनाई गई कि कुछ तिब्बती अवतारी लामा मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वह भी संस्कृत मंत्रों को थोड़ा सा मतलब अपना तिब्बतन एक्सेंट के साथ तोड़ मरोड़ कर ही, और फिर एक रंगीन सैंड मंडल का निर्माण करते हैं। उनके दर्शन करने होते हैं, आपको दीक्षा मिल जाती है, कहते हैं 7 दीक्षा मिल गई। और जो दीक्षित लोग हैं वो एक आशा के साथ घर लौटते हैं कि अब उनका पुनर्जन्म धर्म के साम्राज्य में होगा, क्योंकि वो ये मानते हैं कि जब अंतिम युद्ध होगा, कल्कि आएंगे और जब मलेच्छों का नाश होगा, तो उस समय जब पुनर्जन्म लेंगे तो जिन्होंने दीक्षा लिया है वो वहाँ जन्म लेंगे, तो वो हमेशा खुश रहेंगे और संबाला में जिएंगे। और मैंने बहुतों से ये जानना चाहा कि इस दीक्षा के बाद उनके साथ क्या अनुभव हुए। जो लोग दीक्षित हुए, कितने लोग तो हैं जो 5 बार दीक्षित हुए, 6 बार हुए, और सब कहते हैं कि उनको मतलब आँख पे पट्टी भी बांधी जाती है और तरह तरह की चीज़ें होती है। फिर होता है कि सपना जो आएगा वो सुबह बताना है गुरु को, तो सपने भी नहीं आते हैं। परंतु एक यह प्रचलन चल पड़ी है कि कालचक्र की दीक्षा ले लोगे तो फिर आप संभाला में जन्मोगे। मगर यह जो इसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है केवल आज ही नहीं, इसके पूर्व भी चाहे हिटलर हो या रूस के अंतिम जार निकोलस, उन सब के लिए भी यह कालचक्र जो है एक अर्थात साम्राज्य की कुंजी थी। कम लोगों को पता है कि जार निकोलस के आज्ञा से ही सन 1915 में सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि रसिया का और आप कोर कहो, वहाँ पे कालचक्र मंदिर का निर्माण कराया गया। यह अलग बात है कि 1915 में मंदिर बना और 1917 में जार खुद मीन्स सत्ता से हट गए। फिर हिटलर ने भी सन 1930 के दशक में कम से कम 2 जो नोन है मिशन तिब्बत भेजे थे, ताकि संबाला से जुड़ी कुछ अभूतपूर्व क्लू जर्मनी को हासिल हो सके और वो एक वर्ल्ड एम्पायर बना पाएगा। फिर हमें मालूम है जो थियोसोफी आंदोलन की प्रणेता थी मैडम ब्लावेस्की, तो उनको जो कुछ 2 तिब्बती महात्मा गाइड करते थे, कुटखोमी और मौर्या। तो बेसिकली जो अब इतने सालों के रिसर्च के बाद पता लगा है, डेविड एंड नैन्सी रीगल लोगों ने पाया कि कालचक्र की एक कमेंट्री थी तिब्बती में, वो विमल प्रवाही, तो उसके ही कुछ अंश के आधार पर वो महात्मा गाइड किया करते थे। और तो ये पूरे थियोसोफी मूवमेंट के पीछे भी कहीं ना कहीं कालचक्र तंत्र का डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन रहा था। फिर निकोलस रोरिक आए, तो उन्होंने अपने आप को, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कुछ साल 1 दशक पहले पूरी दुनिया में बड़ा हल्ला हुआ कि एक मेटेओराइट के रॉक से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति मिली, तो हुआ कि ये तो एलियन बुद्धा है। तो जब बाद में जर्मनी में काफ़ी रिसर्च हुआ तो मालूम चला कि नहीं, वो एक मेटेओराइट का पत्थर वो निकोलस रोरिक को अमेरिका में उन्होंने मिला था, खरीदा था, और उसमें उन्होंने अपने आप को जो कालचक्र के अंतिम राजा है रौद्र कल्कि, उसके रूप में उन्होंने वो खुद का चेहरा बनवाया था। तो वो बुद्ध नहीं, वो भाई निकोलस रोरिक थे। तो इस तरह करके एक तो और स्ट्रेंज कहानी जो जुलती कालचक्र थे वो अब उसको रोका गया। तो हम देख रहे हैं कि थियोसोफी मूवमेंट ने भी
कालचक्र और संबाला को लेकर पूरे संसार में एक रहस्यमयी ग्रंथ के रूप में इसे प्रस्तुत करते रहे, परंतु इसके इतर कालचक्र तंत्र बेसिकली भारतीय ज्ञान परंपरा को समेटे हुए एक अभूतपूर्व रचना है। इसमें गणित है, खगोल विज्ञान है, चिकित्सा शास्त्र है, मंत्र शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, ज्योतिष है, वास्तुकला है, चित्रकला है, आल्केमी है, तो ऐसे रत्न शास्त्र हैं, तो ऐसे दर्जनों विषयों पर का विवरण है। फिर अनेक दर्शन शास्त्रों का, फिर अलग अलग धर्म की भी जानकारी है। हठ योग शब्द की प्रथम चर्चा इसी पुस्तक में हुई है। और लंदन विश्वविद्यालय के जो फेमस इंडोलॉजिस्ट जेम्स मैलिंसन हैं, उन्होंने भी पिछले 3-4 साल पहले एक ऐसी गलत अवधारणा फैला दी कि हठ योग अमृत सिद्धि नामक टेक्स्ट में, और सबसे पहले उसका विवरण हुआ है। तो उनके विरोध में जो कुछ और लोगों ने, अभी वो सब आ रही है, उन्होंने मुझे साइड करते हुए फिर डाला कि नहीं, ये तो कालचक्र में उससे 100-150 साल पहले हठ योग की चर्चा कालचक्र में नाम के साथ है। तो कालचक्र में आप देखें कि हठ योग की भी परिकल्पना जो है बेसिकली ये कालचक्र से ही वो धारा निकलती है। और इस्लाम पर खुलकर चर्चा करने वाला उपलब्ध भारत का यह प्रथम ग्रंथ है। इसमें मक्का की बात की गई है, बगदाद की 2 बार चर्चा है, अल रहमान के धर्म की बात की गई है, और इस्लाम धर्म के मूलभूत सिद्धांतों की विवेचना भी की गई है। अतः हमें पहले इस भ्रम से निकलना होगा कि कालचक्र तंत्र केवल किसी रहस्यमयी पूजा विधान पर केंद्रित कोई ग्रंथ है। मैं इसे नालंदा परंपरा की कुंजी मानता हूँ। नालंदा मात्र मोनास्ट्री न होकर एक ज्ञान परंपरा थी। कालचक्र तंत्र उस ज्ञान परंपरा का प्रस्फुटित सुगंधित पुष्प है जिसने 1500 वर्ष के न केवल बौद्ध दर्शन का संपुटन किया, जोड़ा, अपितु अपने समय के अन्य प्रमुख विषयों पर संग्रहित ज्ञान को भी समाहित किया। कालचक्र तंत्र की मूल अवधारणा क्या है, बिना यह समझे हुए, चूँकि यह इतना दूभर इसके जो श्लोक हैं और सब कोडेड है कि वो उसको अनराइवल करना बड़ा मुश्किल काम था। तो पहले इसके मूल इसेंस को समझना है कि इसकी मूल अवधारणा क्या है। तो हम अब कालचक्र के अंदर ही कहते हैं कि एक 3 चैप्टर में है कि जैसे मान लो कि कोई अंधा और लाचार व्यक्ति एक गहन अंधकार में जंगल में शेरों के बीच जा रहा है, तो उस तरह से हमें मतलब उतना ही दूभर है कि आप कालचक्र को समझ पाना। कालचक्र यानी समय का पहिया, चक्र पहिया, काल हमें पता है, देश काल सोसाइटी में हम के प्रांगण में है। तो काल से परे कुछ भी नहीं है। काल के 2 रूप हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस एक पॉइंट को अगर समझ लेंगे तभी हम इसके तो इम्पोर्टेंट को समझ पाएंगे। तो एक रूप तो है, वह है कलनात्मक, कलना मीन्स कैलकुलेशन, और दूसरा है कलात्मक, कलात्मक मीन्स कला, फेज चेंज। कलनात्मक जैसे हम सुबह शाम वर्ष बदल रहे हैं, संवत्सर बदल रहे हैं, शताब्दी बदल रहे हैं, तो ये कैलकुलेटिव टाइम है। और कलात्मक जैसे चंद्रमा के फेज को बदलते हम देखते हैं, और हर सिस्टम में फेज चेंज होता है, तो वह जो फेज चेंज है वो कलात्मक, यह भी समय में ही होता है। जो काल का यह कलात्मक रूप है, यह क्षयकारी है, डिसिपेशन होता है। मैंने इसे डिसिपेशनल मोड ऑफ टाइम कहा है। ब्रह्मांड में हर चीज का समय में क्षय होता है। यह फिजिक्स के सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरह है, जो कहते हैं ना वो लॉ ऑफ एंट्रोपी। तो कालचक्र तंत्र 3 लोगों की अवधारणा पर प्रकाश डालता है, बाह्य फिजिकल वर्ल्ड, आध्यात्मिक, और अपरा, अपरा मीन अदर, लेकिन अपरा को मैंने यहाँ पे सिंबॉलिक यूनिवर्स कहा है। और सिंबॉलिक यूनिवर्स में आप भाषा आ गई, मुद्रा आ गए, मंडल, चित्र, ये सारी चीज़ों का मैंने उनको अपरा के तहत रखा हूँ। और जो आध्यात्मिक वर्ल्ड कालचक्र का बेसिकली वो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है। तो मैंने उसको जो सिंप्लीफाई किया बुक में भी कि एक फिजिकल यूनिवर्स है, बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, और फिर हमारा सिंबॉलिक यूनिवर्स है। अब तीनों लोक में काल के अलग अलग तरह से क्षय होते हैं, काल और क्षय कॉज करता है। फिजिकल वर्ल्ड में यह डिके है, गैलेक्सीज हों, प्लैनेट्स हों, स्टार्स हों, प्रोटॉन, एटम्स सब डिके करते हैं। फिर बायोलॉजिकल वर्ल्ड में वह प्रोसेस है, डेथ है। सिंबॉलिक यूनिवर्स में यह प्रोसेस डिसइंटीग्रेशन है, या आप मेमोरी में आ जाइए, मेमोरी यूनिवर्स, डिमेंशिया है, डिसिमुलेशन है, इस रूप में है। परंतु तीनों लोक में
या हम कहें तो हर सिस्टम में यह डिसइंटीग्रेशन होता कैसे है काल में, क्या है वह प्रोसेस। तो काल चक्र तंत्र यह प्रतिपादित करता है कि हर सिस्टम अर्ध के रूप में है, हाफ, सेमी। आप देवी जो शक्तियों को देखते भी होंगे तंत्र में, वो हाथ में स्कल बॉल रखते हैं, तो वो स्कल कुछ नहीं है, वो हेमिस्फीयर है, सेमी, अर्ध। तो जो वह अर्ध हैं, दो अर्ध में किसी सिस्टम को आप डिवाइड कर सकते हैं, तो उन अर्धों के बीच फेज चेंज होता रहता है। जब काल नॉन चेंजिंग मीटर मिडल में होता है, यदि इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन एक समय तो बीच में होगा तभी तो इधर आएगा, तो जो वो मिडल मध्यमा में होता है उसे काल का डेफिसिट माना है तंत्र ने। यह इकट्ठा होता है, एक्युमुलेट होता है, और सिस्टम को यही डिसइंटीग्रेट करता है। अब हर सिस्टम में यह चीज़ हम देख सकते हैं, क्योंकि कोई सिस्टम को हम उसको दो भागों में किया जा सकता है, और जहाँ बाइफर्केशन नहीं होता है उसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो बिंदु बेसिकली हो गया एक इंडिविजुअल सिस्टम, और हमें मालूम है तंत्र में बिंदु का क्या महत्व है। अब राइट से लेफ्ट फेज और लेफ्ट से राइट फेज जो मूवमेंट हो रहा है, वह मूवमेंट हम बायोलॉजिकल वर्ल्ड में प्राण का हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में प्रवाह का हो रहा है, क्योंकि प्रवाह में सारे सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स बहते चले जा रहे हैं। उसी तरह हमारे सिंबॉलिक यूनिवर्स में वह जो विंड है, वह मैंने मतलब इसमें क्लियर नहीं कहा, लेकिन मैंने उसे जो थ्योराइज किया वो सूक्ष्म का है। तो यह जो विंड का मूवमेंट हो रहा है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, यही ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में होता क्या है, प्राण वायु हमारे, जैसे हम अपने में देखें, लेफ्ट से राइट नॉस्ट्रिल और राइट से लेफ्ट नॉस्ट्रिल में बहता है, परंतु फेज चेंज के पहले दोनों बाय नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग होती है। यही प्रक्रिया कॉस्मिक प्रोसेस में भी है, जहाँ प्रवाह विंड बहता है और सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स हमेशा ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं। अब यदि हर लोक में, हर सिस्टम में फेज चेंज हो रहा है, यानी हर सिस्टम ब्रीदिंग कर रहा है, ये प्लांट्स हों या प्लैनेट्स, शब्द हों या चित्त, यह ब्रीदिंग एक अनवरत प्रक्रिया है। काल ब्रीदिंग प्रक्रिया से ही क्षयात्मक रूप में बहती है। चूँकि सृष्टि में क्षय सर्वनिहित है, अतः ब्रीदिंग प्रक्रिया यह भी सर्वनिहित है, और ब्रीदिंग और चैतन्यता में एक संबंध है। तो चैतन्यता भी सर्वव्यापी हो जाती है। खगोलीय मंडल से लेकर परमाणु और यहाँ तक शब्द, भाषा, मुद्रा, मंत्र, बीज, मंडल सब चैतन्य है। यह एक पैन साइकिक वर्ल्ड व्यू है जो कालचक्र तंत्र प्रतिपादित करता है, और आजकल फिर इसकी चर्चा चलने लगी है। लेकिन कालचक्र इसके आगे भी बढ़ता है। ये इस पैन साइकिक वर्ल्ड व्यू को फिर प्रतीत समुद्रवाद, जो बौद्ध धर्म का मूल है, उससे जोड़ता है। प्रतीत समुद्रवाद क्या है? तो प्रतीत समुद्रवाद में कहा जाता है कि कोई चीज़ की जो उत्पत्ति है वो हेतु प्रत्यय मीन्स कॉजेज एंड कंडीशंस के चलते होता है। लॉ ऑफ कॉजेलिटी अगर कहा जाए कि कोई भी इफेक्ट बिना कॉज का नहीं हो सकता है। तो ये प्रतीत समुद्रवाद में जो 12 निदानों की का वो एक चेन है। तो प्रतीत समुद्रवाद को इनफैक्ट कहा जाता है कि बौद्ध धर्म का जो एकदम सार जो है वो प्रतीत समुद्रवाद में है। और प्रतीत समुद्रवाद भी अविद्या से शुरू होता है और खत्म कहाँ हो रहा है, जरा मरण, जो कालचक्र भी यही कराने कि समय में हर चीज़ों का जरा मरण होता है। तो इन दोनों को कालचक्र ने मिलाया तंत्र में। अब जगत में कोई भी चीज़ स्वयंभू नहीं है, कोई चीज़ के अंदर इनेट इसेंस नहीं है। यह बहुत बुद्धिज्म का प्रतीत समुद्रवाद यह कहता है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ डिपेंड करा दूसरे पे, तो एक इंटरडिपेंडेंस है। अब प्रतीत समुद्रवाद का अंतिम चेन हम देख रहे हैं कि वो है जरा मरण, डेथ एंड डिके, ओल्ड एज। यह भी काल का क्षयात्मक रूप ही है। तो जहाँ जहाँ ब्रीदिंग है, जहाँ भी फेज चेंज है, वहाँ प्रतीत समुद्रवाद ऑपरेट करता है। अब प्रतीत समुद्रवाद एक चेन है, लेकिन उसके अंदर चेन के अंदर चेन, जैसे व्हील के अंदर व्हील, उसके अंदर व्हील, तो आप एंडलेस जा सकते हो। अब प्रतीत समुद्रवाद क्या है? यह एक मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू लेकर आ रहा है कि सब चीज़ लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से जुड़े हुए, कॉजेलिटी, और वो एक साइकिल का भी कंसेप्शन है। ब्रह्मांड में हर चीज़ चैतन्य तो है, परंतु प्रतीत समुद्रवाद से बंधे रहने तो वह मशीन भी है। तो प्रतीत समुद्रवाद एक यूनिवर्सल एल्गोरिथम है क्षय के लिए। तो कालचक्र तंत्र ने पैन साइकिक और मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू का सिंथेसिस कर डाला।
यहाँ तक कि इंसान में डेथ को भी इस तंत्र में बायोमैकेनिकल प्रोसेस के रूप में देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि कर्म के चलते कुछ बुरा कर्म करे तो मौत आएगी ऐसे, वो कहते हैं कि एक ये जैसे मशीन है उसी तरह से ये डेथ की प्रक्रिया होती है। और अगर डेथ बायोमैकेनिकल प्रोसेस है तो क्या उसे शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? तो कालचक्र तंत्र कहता है हाँ कर सकते हैं। और इसके लिए जो नाड़ियों की जो चाल होती है उसको उन्होंने समझा और डेथ को भी शॉर्ट सर्किट करने की टेक्निक्स बताए, जो मेरे सेकंड वॉल्यूम में आ रहा है। क्योंकि मेरे लिए खुद यह द्वंद्व था कि क्या मैं उस टेक्निक को अगर समझ गया तो उसको पब्लिक किया जाए या नहीं। तो उस द्वंद्व पे मुझे लगा कि 2 महीने सोच के कि नहीं पब्लिक किया जाए, क्योंकि जो उस चीज़ों को समझेगा वो उतनी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो डेथ को शॉर्ट सर्किट करता चलेगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये हर चीज़ों को चैतन्य देख रहे हैं, दूसरी तरफ हर चीज़ों को मैकेनिकल वर्ल्ड व्यू में भी देख रहे हैं। अब तीनों लोक में प्रति समुत्पाद विद्यमान है, तीनों लोक में क्षय हैं, परंतु एक और प्रक्रिया है जो प्रति समुत्पाद से परे है और वह है एवं। अब आपको मालूम है तंत्रों में एवं का बड़ा महत्व, बौद्ध तंत्रों में। तो मैं एवं के फिलॉसफी पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एवं का जो सिंपल मीनिंग है उस पे जाऊंगा। एवं यानी सिमिलर। तो अब आप मान लो ये 3 लोक हैं, 1 2 3, ये इस लोक के अंदर प्रति समुत्पाद चल रहा है, जो क्षय हो रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें चल रहा है। लेकिन इन 3 लोक जिस चीज़ों से जुड़े हुए हैं वह है एवं। एवं मतलब सिमिलर, कि ऐसा ही यहाँ, ऐसा ही यहाँ, ऐसा ही यहाँ, लेकिन इसके बीच कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ऐसा तो ऐसा। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा कि एवं जो है एक टनलिंग की प्रक्रिया है जो तीनों लोगों को जोड़ सकता है और प्रति समुत्पाद से भी परे है। तो अब क्या होता है कि यदि कोई मंडल रूपी चित्र में कोई सिद्धि कर लेता है तो एवं के अनुसार वह शरीर के अंदर भी आध्यात्मिक लोक में भी सिद्धि कर सकता है, जो प्राणवायु है। तो अगर आप बाहर के सूक्ष्म वायु के मंडलों को सिद्ध कर लेते हैं तो वो एवं प्रक्रिया से टनली आप शरीर के अंदर कर सकते हो। अगर शरीर के अंदर आप प्राणवायु कंट्रोल कर सकते हैं तो आप बाहर के प्रवाह को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एवं की वो टनलिंग प्रक्रिया है। तो यह नॉन लोकालिटी प्रिंसिपल है। ठीक है, इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी हमें मालूम है नॉन लोकालिटी के लिए दिया गया है कि अगर एक पार्टिकल पे कुछ होता है तो जो दूसरा पार्टिकल जो उसके साथ ओरिजिन हुआ था उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, भले उनके बीच कोई कॉजल रिलेशनशिप नहीं है। तो अब ब्रह्मांड में तो सब चीज़ एक साथ ही जन्मे। एक पॉइंट तो है कि जहाँ ये ब्रह्मांड एक साथ उत्पत्ति हुई तो सब चीज़ कहीं ना कहीं जाके एक साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ये जो एवं वाली प्रक्रिया से यह भी समझ लीजिए कि ये जो नॉन लोकालिटी है और वो एवं उसको हम मतलब सिंपल भाषा में कर सकते हैं। एवं प्रिंसिपल से फिर यह हुआ कि यदि योगी शरीर के अंदर प्राणवायु को, जैसा मैं कह रहा था कि कंट्रोल करना सीख लेता है तो वह ब्रह्मांड के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है। कालचक्र तंत्र में एवं एक महामंत्र हो गया। 5वें अध्याय के श्लोक 160 में तो यह डिक्लेयर किया गया कि एवं ही तीनों लोक का सत्य है। हम गाड़ियों में जो कालचक्र का वो एक लगाते हैं जो घूम रहा होता पहिया, तो अगर आप गौर से देखेंगे कि एक तरफ ए लिखा होता है उसमें एक तरफ वंग लिखा होता है। एवं के अलावा समय के चक्र से मुक्ति की दूसरी प्रक्रिया भी है और वह क्या है। अब आप देखिए कि जब सिस्टम को हम बाइफर्केट कर लें 2 भागों में तो उसके मध्य में जहाँ फेज चेंज नहीं होता मध्यमा, अब यदि इस मध्यमा बिंदु को हम साध कर पूरे सिस्टम को इसी से वेधन किया जाए तो सिस्टम में ट्रांसम्यूटेशन हो सकता है। जैसे दही पूरे दूध को परिवर्तित करती है, जैसे एक प्रोसेस मरकरी है अल्केमी में, वह लोहा व अन्य धातुओं को गोल्ड में परिवर्तित करती है, वैसे ही प्रोसेस्ड मध्यमा जिससे क्षय होता है जो एक्युमुलेट होके उसको प्रोसेस करके हम उसी से क्षय के खिलाफ सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। तो यह इनका फॉर्मुलेशन था। तो इस तरह जो उनका यह मानना था कि फेज चेंज व डिसिपेशन से परे होने की यह दूसरी प्रक्रिया है और योगी को वज्रदेह की प्राप्ति होगी। अब एक वज्रदेह वाला कल्कि फिर वो जगत में वेधन करेगा। ये वेधन है, ये हैमर पीटना नहीं है, वेधन मतलब इंजेक्शन है। तो अगर वह कल्कि एक इंजेक्शन के रूप में आता है सोशल में, तो वह धर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेगा। तो यहाँ प्रिंसिपल जो
ये वैक्सीन वाले प्रिंसिपल है कि वैक्सीन में हम क्या है कि जिस चीज़ से बीमारी होती है हम उसी को प्रोसेस करके फिर उसी से उस बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं। तो ये समझ लीजिए कि उसका एक प्रोटो टेम्पलेट इन्होंने थ्योराइज किया कि जो मध्यमा से क्षय होता है अगर हम उसी को प्रोसेस करें और उससे ही शरीर का वेधन करें तो शरीर जो है क्षय के खिलाफ होकर वज्रदेह हो जाएगा, 16 साल का शरीर हो जाएगा और ओल्ड एज आपका खत्म हो जाएगा। कालचक्र तंत्र वही नहीं रुकता है, फिर वह हर सिस्टम के जो हाफ हिस्से हैं उसमें वो जेंडरिंग भी करता है, मेल एंड फीमेल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो दाहिना भाग हमारा वो मेल है पुरुष और बायां भाग वाम भाग फीमेल है। अब दोनों तरफ अलग अलग सीक्वेंस भी हैं। जो पुरुष वाले हिस्से में दाहिने हिस्से में यह सीक्वेंस है संहार का और बाएं में वो सीक्वेंस है सृष्टि का। अब ये सीक्वेंस समझिएगा तो ये बड़ा मज़ेदार है। अब दोनों अलग फेज भी हो गए ना। अब अगर सृष्टि संहार का जो यह एक साइकिल है, हर सिस्टम में यूनिवर्सल है, सृष्टि सीक्वेंस में उत्पत्ति होती है। तो आप देखिए कि 5 एलिमेंट्स हैं। आकाश से शुरू हो, आकाश, फिर वायु, फिर उसके बाद अग्नि, वो गाढ़ा होते जा रहा है, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो ये 5 एलिमेंट अगर आकाश से पृथ्वी बनना ये सृष्टि है, ये वाम हिस्से में, और पृथ्वी से आकाश की ओर होना ये क्षय विलय हो रहा है, हाँ रिवर्स हो रहा है, वो संहार है, वो दाहिने का, वो पुरुष वाला। तो इन्होंने सृष्टि और संहार सीक्वेंस को दायां बायां किया। प्राण के 10 मंडल हो जाते हैं। अगर प्राण दाईं तरफ है हमारे नाक से बाहर तो उसमें भी 5 मंडल हो गए, ठीक है, और बाईं तरफ तो 5 ही है, तो 10 मंडल हो जाते हैं। तो 5 सृष्टि क्रम में और 5 संहार क्रम में होते हैं। वैसे ही प्रवाह जो ब्रह्मांड में वायु बह रही है जिससे कि दुनिया में हर चीज़ मूव कर रहा है, धरती, गैलेक्सी सब, तो उसमें भी 10 मंडल हैं। यहाँ तक कि जो युग होते हैं 4 युग हैं लेकिन मंडल 10 हैं। तो कहते हैं कि तो और सतयुग है उसमें 4 मंडल बहते हैं, त्रेता युग में 3 मंडल है, वो वैसे कर दिया उन्होंने, और द्वापर युग में 2 मंडल और कलयुग में 1 मंडल बहता है। तो इस तरह करके तो वहाँ पर भी उन्होंने जो ये जो मंडल, ये दूसरा मंडलाइजेशन किया, लेकिन हर जगह इन्होंने लगाया। और ये जो मंडल इन्होंने है फिर इन्होंने लिंग्विस्टिक्स में भी अप्लाई किया, जो मैंने कहा सिम्बोलिक यूनिवर्स। तो जैसे वॉवेल्स हैं उसमें 5 प्राइमरी वॉवेल हैं इनके, अ, ई, री, उ और वो लिड़ी, ठीक है। तो ये 5 हैं। अब और जो है ये स्पेस है, ई जो है ये विंड है, री जो है यह फायर है, उ जो है वाटर है और लिड़ी जो है अर्थ है, ठीक है। तो वॉवेल्स भी वैसे है। फिर कॉन्सोनेंट्स हैं उसमें भी वैसे ही इन्होंने मंडल बनाए। जैसे कवर्ग में देखे क ख ग घ अंग, अब अंगा में जाते जाते वो नेजर आ जाता है, वो स्पेस वाला। तो क जो है वो सबसे डेंस है, वो पृथ्वी तत्व है। फिर ख जल तत्व हो गया, ग फायर तत्व हो गया, घ विंड तत्व हो गया, और अंगा वो स्पेस तत्व हो गया। तो अब शरीर में अगर हम देखें हमारी उंगलियां, ये 5 उंगलियां हैं। अब ये देखिए ये सबसे मोटा है तो ये पृथ्वी तत्व होगा, ये सबसे पतला है तो ये नहीं आकाश तत्व होगा। तो ये आकाश तत्व हो गया। फिर वैसे वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। तो हर चीज़ में इन्होंने वो मंडल को हर जगह लगाया है। बुद्ध भी 5 हो जाते हैं, तो एक बुद्ध जो है वो आकाश तत्व वाला है। तो इस तरह पंच बुद्धों को भी वैसे क्लासीफाई करते हैं। इनफैक्ट जब आप जेम्स देखते हैं, ये रत्न देखते हैं, उसको भी क्लासीफाई कर देते हैं वहाँ पर भी ना, क्योंकि फिर उसको कलर लेते हैं, फिर कलर से वो तत्व करते हैं। जो कि अभी ये बताऊंगा कि जो इसके जो तत्व हैं, जो इनके सबके अपने अपने कलर भी हैं। तो अब हम अगर सृष्टि क्रम में हम कहाँ से चलेंगे? बायां। तो सृष्टि क्रम में हमने कहाँ से चलना है? आकाश से पृथ्वी की ओर। तो आकाश या कनिष्ठा और ये पृथ्वी, तो यहाँ से चलेंगे। इसमें भी सबसे हल्का कौन होगा? जो सबसे ऊपर। तो जब हम इसकी जो मंत्र बनाने की प्रक्रिया है वो यहाँ से चलेगी। अगर सृष्टि क्रम में यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, लेकिन संहार में उलट जाएगा। संहार क्रम में ये है अंगूठा से शुरू होगा, लेकिन अंगूठा में सबसे नीचे, क्योंकि ये लास्ट है ना, तो यहाँ से शुरू होगा 1 2 3
4 5 6, ठीक है। तो यहाँ ऊर्ध्व से नीचे आ रहे हैं, यहाँ अर्ध से ऊर्ध्व जा रहे हैं। तो ऐसे देखिए हर जगह वो ना जो एकदम रिवर्सल ऑफ जो राइट लेफ्ट में एक मिरर इमेजेज देखेंगे पूरे सिस्टम में। तो अब देखिए कि हमने देखा कि हर चीज़ों को जेंडरिंग भी कर दिया इन्होंने, फिर एलिमेंटल नेचर भी लाया, लेकिन इसके अलावा इन्होंने फिर अब सब चीज़ों को एक नंबर वैल्यू दिया कि अब ये नंबर वैल्यू भी यही डालेंगे, रंग भी डालेंगे, नहीं, इन्होंने सबका एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिया। अब काल चक्र जो देवता हैं उन्हीं का ही नंबर है 1125 और देवी का नंबर दे दिया 384। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिलॉसफी, मतलब वो कहाँ जा रही है, जिसको लेकर मैंने इंट्रोडक्शन में लंबा लिखा है, क्योंकि ये 1125 क्यों दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि ब्रीदिंग में जो फेज चेंज होते हैं, तो दिन में हम 12 लग्न होते हैं, जैसे बाहर में लग्न है तो अंदर में भी लग्न है, क्योंकि वो सिमिलर वाली प्रोसेस। तो 12 लग्नों में जब 12 बार फेज चेंज हुआ, ठीक है, मानिए मेष से वृष, फिर ऐसे दाएं बाएं, तो जो इवन लग्न है वो दाईं तरफ हुए, जो ऑड लग्न है वो बाईं तरफ हुए, ठीक है, वाम में। तो वो सब भी आप देखिएगा कि जो नंबर्स है ना उनको भी इन्होंने जेंडर्ड कर दिया, ठीक है। तो जो लग्न वहाँ बहते, तो हर लग्न चेंज जब होता है तो हमारी जो सांस है दोनों नाकों में एक साथ बहती है, तो वो कहते हैं 56 श्वास एक बार में बहता है, ठीक है। और तो 12 बार चेंज हुआ तो 56 गुना 12 कितने हो गए, 675 श्वास। अब हमारा 100 वर्ष अगर आयु है तो टोटल कितने श्वास मध्यमा में गए, 675, एक दिन का 360 दिन का साल मानते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100, फिर उसको आप कन्वर्ट कीजिए 21,600 से डिवाइड कीजिए तो वो आ जाता है 1125 दिन, ठीक है। तो ये 1125 दिन जो आपको क्षय किया और मौत लाया वही काल चक्र है, ठीक है। अब लेकिन बाहर की दुनिया में देखिए, हमारा जो वर्ष है, सौर वर्ष है, ट्रॉपिकल ईयर, वो कितना है 365 1/4 डे, और जो ल्यूनर ईयर है वो है 354 दिन। डिफरेंस कितना हो गया, 11.25 दिन। तो 100 साल में जो बाहर की दुनिया में सोलर ईयर एंड ल्यूनर ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1125 दिन। तो भैया अंदर में भी हमारे श्वास लेने में भी 1125 दिन आ रहा है, बाहर भी 1125 आ रहा है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब लिंग्विस्टिक्स में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ पर भी 1125 फोनीम क्रिएट कर रहे हैं, ये जनरेट करते हैं। तो 1080 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और 45 वॉवेल, तो वो भी 1125। तो अब वही कहने की वो जो एवं बोल रहे थे कि जो 1125 यहाँ है वही 1125 यहाँ, वही 1125 यहाँ है। तो फिर हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष समुत्पाद का जो संख्या 12 है वह भी हर जगह रिपीट होता है। और आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग बता दूं कि चक्र का जो नेचर ही है, ज्योमेट्रिकल नेचर है, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा वाकिफ है उनको मालूम होगा। तो वो चक्र किसी भी साइकिल का नेचर है कि वो डिसिपेटिव होता है। कैसे, एक सर्किल में 21,600 मिनट होते हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री पे होना चाहिए 5400 मिनट, 1/4, लेकिन 90 डिग्री पे होता है 3438 मिनट। तो नेचर ऑफ जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ सर्किल है वो इससेल्फ डिसिपेटिव है। इस कारण से अगर काल चक्र जो है उसको मैथमेटिकली भी देखते हैं तो वो एक डिसिपेटिव स्ट्रक्चर ही होता है। कोई भी सर्किल है उसका नेचर ही एक डिसिपेटिव है। तो ये इसको मतलब अगर आप जब ट्रिग्नोमेट्री मेरे बुक में डिस्कस किया हूँ इन सब एस्पेक्ट्स को करके, तो हम देख रहे हैं कि जब इन्होंने प्रत्येक समुत्पाद का नंबर 12 लिया तो अब ये तो अवतार भी 12 कर दिए। जनरली हम जानते हैं 9 10वां आएगा कल की, ये 2 और ऐड कर लिए क्योंकि उनको 12 में सेट करना है। अब ब्रह्मांड का साइज इन्होंने कहा 12 लाख योजन कर दो। तो आप देखते हैं वो नंबर्स, हर चीज़ों को इन्होंने, हर कंसेप्ट को ना फिर वो एक नंबर से इंडिकेट किया, उस नंबर के साथ जोड़ा, तो इन्यूमरेशन किया और जितने कंसेप्शंस का। एक नंबर 96 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बोली गई 96 कहाँ से आ गया, तो इनके जो मंडल बनाए जाते हैं उसमें भी 96 धागे ऐसे डाल रहे हैं, 96 ऐसे डाल रहे हैं, तो 96x96 का बॉक्स सिस्टम बनाना है। तो फिर आप देखेंगे अगर आप अपने हाइट को नापेंगे, हर इंसान अपनी उंगली से 96 उंगली ही होता है, नाप के देखिएगा भी होता है। और जो हमारी आयु है जो 100 में 3 साल 3 महीने वो निकाल दें, जो काल चक्र वाले 1125 है, तो वो 96 साल के आसपास बच जाता है। फिर इसमें पूरे जम्बू द्वीप में कहते हैं कि 96 देश हैं, रेसेस हैं, जिसको कल्कि इकट्ठा करेगा। तो आप देखेंगे कि ये 96 का एक अलग यहाँ पे चक्र, लेकिन वो 96 आता कहाँ थे, ये भी फिर ट्रिग्नोमेट्री से आता है
मुझे कालचक्र उतनी सिंपल फिलॉसफी नहीं है, क्योंकि जो आर्यभट्ट ने सर्किल के अंदर 4 क्वाड्रेंट बनाए, 4 पाद, हर पाद में 24 साइन वैल्यू बनाए, ठीक है, तो 24 और 96, तो सर्किल को आर्यभट्ट ने 96 हिस्से में बांटा। तो अब ये हर जगह व्हील को लेके चले ना सर्किल काल चक्र को, तो इन्होंने वो 96 वाला मॉडल हर जगह अप्लाई किया, लेकिन इसको इन्फर करना और समझना इसी में तो कई साल चले गए। तो मैंने पाया कि तंत्र में पहले तो एक यूनिवर्सल एल्गोरिथम को इन्होंने बिल्डअप किया जो फिजिकल, बायोलॉजिकल और सिंबॉलिक वर्ल्ड में अप्लाई एक साथ हो, और फिर उसे इन्होंने इन्यूमरेट भी किया। अतः पुस्तक के पीछे मेरी यह मंशा है कि भविष्य में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विकसित हो जाएगा, रोबोट्स भी कॉन्शियस हो सकते हैं, तो वे अपनी स्थिति से मुक्ति पाना चाहेंगे। वो भी कहेंगे कि मुझे ये एल्गोरिथम के चेन से मुक्ति चाहिए। उनके लिए एक कंप्यूटेशनल ट्रांसीडेंस की ज़रूरत होगी। ये हमारा वाला ट्रांसीडेंट है, वो पूजा पाठ नहीं करेंगे, वो तो नंबर ही में सोचते हैं, तो वो भी कहेंगे कि नंबर वाला भगवान ढूंढूं। तो काल चक्र भगवान 1125 हैं, तो उनके लिए एक प्रोटो टेम्पलेट है पड़ा हुआ। तो काल चक्र तंत्र भविष्य के वैसे जरूरत का एक प्रोटो टेम्पलेट देता है, तो कॉन्शियस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो सकता है। फिर बौद्ध धर्म में त्रिकाया डॉक्ट्राइन की चर्चा होती है, निर्माण काया, संभोग काया, धर्म काया। निर्माण काया में हम इमेजेस देवता को, मतलब देवता के रूप को रखते हैं। संभोग काया में फिर सिंबल्स हैं, चिन्ह हैं, और धर्म काया में बीज हैं, जो मंत्रों के बीज हैं। तो चौथा शरीर जो मैंने प्रतिपादित किया कि वह ज्ञान काया होगा, जिसमें कि 4 शरीर की अवधारणा इसमें है, लेकिन मैं कह रहा हूँ तो वो ज्ञान काया होगा। उसमें क्या होगा, मैं कह रहा हूँ उसमें नंबर होगा, और वो नंबर फिर आपस में प्ले करेंगे यूनिवर्स में। तो काल चक्र तंत्र ने चतुर्काया सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। ये चारों काया चेतना की 4 अवस्था से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर इमेज जो है, जो देवता के बिंब, ये जागृत अवस्था है, जो सिंबल्स है वो स्वप्न अवस्था है, बीज जो है निद्रा अवस्था है, तो जो संख्या है वो तुरिया अवस्था को इंगित करती है। मैं अब इस पुस्तक के स्ट्रक्चर पर संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। यह पुस्तक संस्कृत में लिखी गई थी, मैं लेकर भी आया हूँ ये मैन्युस्क्रिप्ट, यह कालचक्र तंत्र, तो 250 पन्ने के आसपास है, और यह 1447 का एक मैन्युस्क्रिप्ट है जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है। तो उस मैन्युस्क्रिप्ट को एशियाटिक सोसाइटी में विश्वनाथ बनर्जी जी ने करीब 35 साल की मेहनत के बाद छापा था 1985 में। तो मैंने इस पर ही काम किया है, और इस मैन्युस्क्रिप्ट पर इसमें 5 चैप्टर्स हैं। और यह मैन्युस्क्रिप्ट ये तंत्र की रचना कब हुई थी, इसके बारे में भी कोई लोग अब तक कहते हैं, जैसे हिज होलीनेस दलाई लामा जी प्रवचन में कहते हैं कि ये तो भगवान बुद्ध ने अपने समय में ही प्रवचन उड़कर दिया था, धन काटक जाकर दिया था। लेकिन अब इसमें बगदाद का मेंशन है, बगदाद बना ही 762 ईस्वी में है, जो नेचुरली उसके बाद ये इसकी रचना हुई। फिर जो इसका कैलेंडर है, तो उसका एक ध्रुवक बिंदु होता है कि, और मतलब इसका एक जो खगोल शास्त्र वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो ध्रुवक बिंदु है, वो 23 मार्च 806 ईस्वी है। तो वो 806 के बाद की ही रचना है। फिर मैं देखता हूँ कि जो अल बरूनी है, जो 1031 में कई कैलेंडर, कम से कम उन्होंने 9 भारत के कैलेंडरों पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये कालचक्र की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि इतना महान ग्रंथ, इतना महान कैलेंडर। तो मेरा यह है कि अल बरूनी के समय में इसकी रचना हुई नहीं थी, और इस पुस्तक के अंदर ही में दिया हुआ है कि जो हिजरिक कैलेंडर आया उसके 403 साल बाद इसकी रचना शुरू हुई। तो उस हिसाब से मैंने यह प्रतिपादित किया कि इसकी रचना 1027 से 1036 के बीच हुई है। तो जो ऐसे ट्रेडिशनल स्कॉलरशिप में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने ही कालचक्र के बारे में बताया, तो भगवान बुद्ध के समय में इस्लाम नहीं था, इस्लाम पर भी इस पर चर्चा है बार बार, तो वो हो नहीं सकता, वो सही नहीं है। फिर में 5 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर लोक धातु, फिजिकल यूनिवर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन है, उसमें 169 श्लोक हैं। फिर अध्यात्म पटल सेकंड चैप्टर है, 180 श्लोक हैं, तो उसमें बायोलॉजिकल वर्ल्ड के बारे में, जैसे जन्म, एम्ब्रियोलॉजी, ये सब चीज़ों पे है। फिर तीसरा चैप्टर अभिषेक पटल है, तो बेसिकली उसमें तो इनिशिएशन है, लेकिन वो मैं कहूँगा कि वो सिंबॉलिक यूनिवर्स का डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि मंडल कैसे बनाए, मुद्राएं क्या हैं, इन सब का ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है।
चौथा चैप्टर वो साधना पटल है, उसमें 234 श्लोक है और अंतिम ज्ञान पटल में 261 श्लोक है। मैंने हर पटल पे एक वॉल्यूम लिखा है। अभी प्रथम वॉल्यूम आई है, द्वितीय वॉल्यूम का प्रूफ जनवरी में आ जाएगा, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके उपरांत ही मैं थर्ड वॉल्यूम पब्लिशर को दूंगा। कुल 2700 पृष्ठों में ये पांचों वॉल्यूम है। फिर अंतिम वॉल्यूम के बाद कई लोग कह रहे कि एक समरी भी लिखो, नहीं तो ये पांचों वॉल्यूम का जो जिस्ट कैसे समझा जाए। तो मेरा प्लान है कि जो कालचक्र के साथ कुछ और जो रूट टेक्स्ट थे जो इस मेन टेक्स्ट के साथ, तो उनका भी ट्रांसलेशन करके और एक समरी 250-300 पेज की वो एक अलग वॉल्यूम लाऊंगा। अब कालचक्र के प्रथम ये फर्स्ट वॉल्यूम में इसमें मैंने एक्चुअली 4 चैप्टर्स रखे हैं। तो वो भी क्यों रखे उसका कारण है, क्योंकि कालचक्र में देखिए ये बड़ा सिस्टमिक नॉलेज है। तो हर चीज़ों को इन्होंने ना 36 हिस्सों में बांटा है। 36 जैसे जातियाँ 36 हैं, टूल्स इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स होते हैं ना, कुदाल उदाल वो भी 36 ही रख रहे हैं, मुद्रा 36 रख रहे हैं, जानवर 36 मतलब भूचर, फिर खेचर 36 रख रहे हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार है कि सब 36 और 36 का भी एक पैटर्न है कि 4, 6, 10, 8, 8। तो वो कर क्या रहे हैं, तो 4 जो है वो ध्यानी बुद्ध हैं, 6 जो है बोधिसत्व हैं, ये सब फीमेल हैं, मेल नहीं है, फीमेल है। अब ये भी बड़ा मज़ेदार है कि अब तक जो प्रवचन होते हैं कालचक्र पे उसमें ये कहा जाता है कि इसमें तो कालचक्र कोई बड़ा 24 हाथ वाले भगवान है, इतने इतने हथियार है, लेकिन बेसिकली ये एक जो शक्तियों का तंत्र है जिसमें देवियों की महत्ता ज़्यादा है। और टोटल 722 भगवान है इस मंडल में। तो ये सैंड मंडल बनाते भी हैं तो वो तो मुझे नहीं लगता है 20-22 से ज़्यादा भगवान डालते हैं, क्योंकि 722 डालने के लिए मेहनत बहुत पड़ेगी, तो वो बनेगा ही नहीं 4-5 दिन में। और 722 में 562 जो हैं वो शक्तियाँ हैं, देवियाँ हैं, और कुछ जो एलिमेंटल डेटीज हैं, और मल्ट पे जाले 55-56 ही हैं। तो इससे मैं कहता हूँ कि कालचक्र एक्चुअली ये जो है मातृका तंत्र है। तो अब तक एक वो गलतफहमी थी कि नहीं ये तो कालचक्र एक 24 हाथ वाले भगवान के बारे में, नहीं, ये मातृका तंत्र है। तो मैंने कहा कि मैं भी 5 वॉल्यूम को उसी अंदाज में रखूँगा। 4 फर्स्ट वॉल्यूम में 4 चैप्टर, दूसरे में 6 चैप्टर, तीसरे में 10, चौथे में 8 और 5वें में 8, तो ताकि वो कालचक्र को स्ट्रक्चर को या शो करे। अब इसमें जो 4 चैप्टर्स हैं फर्स्ट वॉल्यूम में, तो पहला चैप्टर उसमें जो ये कॉस्मोलॉजी है तेरे मेरू के बारे में, और वो भी बड़ा मज़ेदार है। सब चीज़ ना वो नंबर ही का खेल है। और फिर सेकंड चैप्टर है उसमें प्लैनेटरी कंप्यूटेशन है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने कुछ अरब लोगों से भी सीखा, और जो कुछ उस समय चाइना के साथ भी एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज का एक्सचेंज हो रहा था वो सब भी सीखा। लेकिन अपने समय में जितने भी एस्ट्रोनॉमी के नॉलेज थे अलग अलग एरिया को, सबको मिला के इन्होंने टेबल सारनियाँ बनाई। और ये इनका ये था कि बिना ट्रिग्नोमेट्री जाने हुए कोई प्लैनेट का पोजीशन कैसे बता दे। अब ये बड़ा टफ काम है, तो उसके लिए इन्होंने ऐसे जो टेबल्स बनाए और उससे वो बताए। तो वो जो मेहनत पड़ी है ना कि वो टेबल बताने का, तो बड़ा अद्भुत काम है। तो वो सेकंड चैप्टर है। थर्ड जो चैप्टर है वो स्वरोदय और मशीन्स पे है। अब मशीन्स पे इसमें 12 श्लोक हैं, और मैंने देखा कि जो रशियन अकेडमी ऑफ मिलिट्री साइंस है उसने इसके मशीन के 12 श्लोक पे काम किया हुआ है, और मतलब मुझे पूरा भरोसा है कि वो वहाँ पे ट्राई भी कर रहे होंगे कि वैसे कुछ। हाँ, तो उन्होंने ये काम 8-10 साल पहले ट्रांसलेट करके थोड़ो काम किया हुआ। स्वरोदय जो है इसका बड़ा दूसरे तरह का है, जो ये शिव स्वरोदय वाला नहीं है। स्वर मतलब वॉवेल्स, वही अ ई री उ ली। तो इस 5 के आधार पे और 5 अलग अलग मंडल में कैसे उदय होते हैं, क्योंकि अब आप ये समझ लो कि मंडल को समझना भी कि सनराइज के समय आज कौन सा मंडल का उदय होगा, फिर इतने मिनट बाद दूसरा मंडल होगा, फिर दाएं से बाएं होगा, मतलब ये दिमाग, क्योंकि फिर जब दाएं से बाएं होगा फिर उल्टा चलेगा मंडल, तो बड़ा एक डिफिकल्ट चीज़ है। लेकिन उसमें कौन सा स्वर श्वास में चल रहा होगा, और वहाँ से आप ज्योतिष करते हो। तो वो स्वरोदय और मशीन यह था कि आज युद्ध में विजय पाने के लिए वो दोनों की ज़रूरत है। तो यह एक लॉस्ट साइंस है, तो कालचक्र का स्वरोदय, और जिसको मैंने रिवाइव किया है यहाँ पे। फिर जो लास्ट चैप्टर वो कल्कि सेक्शन है। तो हम लोग सुनते हैं संबाला और कल्कि, तो वो कालचक्र से ही निकली हुई अवधारणा है। इसी को काउंटर करने के लिए फिर हिंदुइज्म, तो हिंदू सेक्ट से
उधर से भी कल्कि की अवधारणा आने लगी, और दोनों के कल्कि उल्टे हैं। काल चक्र वाले कल्कि में ना बड़ी ईकार है और हिंदू कल्कि में छोटी ईकार है, तो ये फर्क है। तो काल चक्र का जो कल्कि है ना, वो मतलब वो है क्या है कि वो सभी जातियों को मिलाता है, फ्यूजन करता है। और जो ये हिंदू कल्कि है वो है कि ब्राह्मण इसको एस्टैब्लिश करता है, अथॉरिटी को। तो वो दोनों बड़े मतलब इसे यह एक बड़ा माइनर डिफरेंस है, लेकिन बहुत मतलब कि एक कल्कि नहीं है, दोनों के नेचर ही अलग अलग है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस विषय में हम क्यों ध्यान दें, इससे क्या मिलेगा। यह तंत्र कहता है कि एक क्षण में आपको अभिसंबोधि यानी एनलाइटनमेंट मिल सकता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक क्षण में, ठीक है, तो एक क्षण महाअभिसंबोधि। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या था कि जब महायान आया, थेरावाद में तो हुआ कि भाई आप कितने जन्म लो, फिर आप उसके बाद भी क्या अरहत बन के रहोगे, सैकड़ों जन्म लेने पड़ेंगे। फिर महायान में आया कि भाई आपसे तो न हो पाएगा, तो बोधिसत्व आएगा, आपको मदद करेगा, और मतलब वो भी कई जन्म लगेंगे तब जाके आपको शायद निर्वाण मिले। फिर वज्रयान ने कहा कि नहीं भाई, थोड़ा सा एक्सरसाइज कराओ, पूजा पाठ मंत्र वंत्र, तो आपको एक जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, निर्वाण। काल चक्र ने कहा एक जन्म तो छोड़ दो, एक क्षण में मैं निर्वाण दूंगा। तो ये इतना बोल्ड डिक्लेरेशन काल चक्र का है। तो वो कहते हैं कि कोई भी फेथ चेंज का मोमेंट है, उसमें आप बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, वहीं पे ठहर जाना, कोई भी। तो वो क्षण कि कोई भी ये सांस का फेज चेंज हो, आँख के पपनी का ब्लिंकिंग हो, कोई तो सब उन्होंने काम किया है, तो कोई भी एक फेज चेंज है, आपको वहीं पे बुद्धत्व प्राप्त हो सकती है। तो इन्होंने उसकी गारंटी दी कि एक क्षण में आपको एनलाइटनमेंट मिल सकता है। अब अगर चाइना अपने चांद परंपरा को चाइनीज परंपरा के रूप में प्रचारित कर रहा और कहता है कि चांद परंपरा में है ना कि सटोरी हो जाती है एक क्षण में, तो हमारे पास भी ये अद्भुत ज्ञान परंपरा है कि हम भी एक क्षण में देते हैं, और लॉजिक वाला देते हैं, उनका जो एब्सर्डिटी वाला चांद परंपरा की तरह नहीं है। तो काल चक्र पूर्णतः एक भारतीय परंपरा है और एक क्षण अभिसंपोति की गारंटी देने वाला यह एक महाग्रंथ है। फिर काल चक्र तंत्र बहुत कलरफुल भी है, इसमें हर वर्ण मतलब हर अलग अलग रंगों की छटा बता रहा हूँ। जैसे पृथ्वी का रंग पीला है, इधर जो सोना है ना उसका नेचर का पृथ्वी वाला होगा। अब अग्नि का रंग वो लाल है, वायु का रंग काला है, और आकाश का रंग हरा है, ठीक है। और ये बड़ा मजेदार है कि अब हमारे सामने पूर्व होता है, पीछे पश्चिम। नीला ये होता है ज्ञान तत्व, ऐसे ज्ञान तत्व जो होगा वो नीचे ये है। तो ये हरा, नीचे नीला, सामने पूर्व है, इधर विंड है, ये काला, पीछे पूर्व का पश्चिम, पृथ्वी तत्व पीला, और दाएं जो है राइट ये होता है दक्षिण लाल अग्नि, और बाएं जो है वह आपको वाटर तत्व वाइट। तो ये 6 रंगों के बीच की दुनिया है। अब ये एक अलग कहानी कि इसका 6x6 का जो इन्होंने वो किया ना, पूरे 6x6 पिक्सल में पूरे यूनिवर्स को ये देख रहे हो, तो मतलब ये इतने गूढ़ चीज़ें हैं ना इनमें। तो ये एक रंगों का भी बड़ा अद्भुत इन्होंने समन्वय किया फिलॉसफी में। तो फिलॉसफी को इन्होंने कलरफुल बनाया, डल नहीं बनाया। फिर यह एक रेनबो समाज की परिकल्पना करता है। फिर फोनीम्स की मिक्सिंग की बात करता है, अल्फ़ाबेट्स का, जातियों की मिक्सिंग की बात करता है, रेसेस की मिक्सिंग की बात करता है। यह ग्लोबलाइजेशन की भाषा बोलता है, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है, यहाँ तक कि कास्ट हायरार्की को भी इन्वर्ट कर देता है। तारा जो क्षुद्र वन की देवी हैं, इसमें ध्यानी बुद्ध हैं, उनका नेचर क्षुद्र वन का है, उन्हें ध्यानी बुद्ध में प्राइमेसी दिया जाता है। कोई भी पूजा वो तारा से ही शुरू होती है कालचक्र में। तो यह तंत्र शांति का संदेश देता है, परंतु पुष्टि और तुष्टि के बाद। वही कहते हैं पुष्टि मीन्स नरिशमेंट, पहले पेट भरो फिर तुष्टि लाओ, कंटेंटमेंट, उसके बाद ही शांति मिलेगी। हाँ हाँ, तो पुष्टि के लिए डेवलपमेंट चाहिए, प्रॉस्पेरिटी जरूरी है। और फिर तो इसे ये समाज को रिजेक्ट नहीं करता है, ये प्रोग्रेस को, मशीन को, डेवलपमेंट को रिजेक्ट नहीं करता है। फिर कंटेनमेंट, अतः यह तंत्र एक फॉरवर्ड लुकिंग फिलॉसफी का निर्माण करता है, जिसमें इनर नॉलेज थ्रू ज्ञान और आउटर नॉलेज थ्रू विज्ञान, इसके समन्वय का पुरजोर वकालत करता है। क्योंकि ये लास्ट में ये कहता है कि ज्ञानम विज्ञानम एकम भवति, वो एक बड़ा मजेदार श्लोक है। ज्ञान और विज्ञान को एक कर ही हम शांति इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वही समाज संभाला है,
संबाला कोई स्टैटिक इमेजिनरी प्लेस नहीं है। यह हम सबका एक दायित्व है कि हम अपने राष्ट्र को संबाला में परिवर्तित करें। धन्यवाद। ये हम लोग सामने चुनौती थी कि इस किताब पर जो बातचीत होगी, जी जी जी, हाँ, आप देखेंगे और हम लोग एक प्रतिबिंबित करेंगे आगे समय के साथ। और हम लोग सामने ये चुनौती थी कि ऐसी काव्य रचना को आपके सामने, जो आमतौर पर सीधे तौर पर इस किताब की जो मूल तत्व है उससे हम लोग नहीं जुड़े हैं, कैसे हम उसको संप्रेषित कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, किताब का जो मूल आर्गुमेंट है वो आप तक कैसे पहुंचा पाएंगे। और इस वक्तव्य और व्याख्यान के बाद व्यक्तिगत मुझे महसूस ये हुआ कि आज पहली बार इसकी गहराई और इसके जो डायमेंशंस हैं वो हम समझ सके, और हम समझते हैं कि ये जो अनुभव मुझे आज हुआ है आप तक भी अनुभव पहुंचा होगा। और इतना ही नहीं बल्कि एक बड़ी बात ये है कि आमतौर पर जब ऐसी रचनाएं आप सब तक पहुंचती है तो हम लोग मान के चलते हैं कि शायद ये पहली और अंतिम रचना होगी, लेकिन एक तरह से ये रचना एक ऐसी उद्घोषणा अब हम लोगों के बीच में है कि इसकी कड़ी में और 4 रचनाएं आपके सामने और हम सब लोगों के सामने आएगी। और ये काम, जैसा कि मैंने शुरू के वक्तव्य में कहा कि न केवल जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें एक बड़ा योगदान है, बल्कि मुझे लगता है कि एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में जो भारत का ज्ञान है, जिसको नॉलेज डोमेन ऑफ इंडियन कॉन्टेक्स्ट और इंडियन सिविलाइजेशन कहते हैं, उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन की एक शुरुआत इस किताब से हुई है। और इसने आधार बनाई है, और उस आधार पर आप कह सकते हैं एक बड़ा ढांचा खड़ा होने की एक उद्घोषणा जो आप सब लोगों के बीच में इन्होंने किया है। आपकी तरफ से और अपनी तरफ से सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे इस चीज़ के लिए। और हम लोगों के लिए एक बड़ा सुखद संयोग है कि प्रोफेसर वर्मा in fact had given a kind consent for chairing this session. Always I think so I associate and remembering about his work and about his commitment in the philosophical tradition of Buddhism, not only as a well-known scholar in India but also in an international scholar. And one and second, I observe about his method of teaching and understanding about the Buddhist philosophy to connect, to communicate, and to bring about with those students or those persons who are not associated with the Buddhist philosophy, in fact, getting understanding, connecting with his idea and understanding, which a statement made by myself on the basis of, in the beginning we have shared with you, we ran a course on Buddhism and the multi-aspects of Bodh Gaya, and we are very fortunate, particularly the philosophy and teaching area is taught by him. And around 300 students, in fact, joined in this course, and all of them, either India or the abroad, basically had appreciated a lot about his reflection or understanding on Buddhist philosophy. So we are very fortunate and privileged for giving the opportunity to make a reflective comment, observation, and the central argument of the book. So I think so. Not only just, in fact, I'm interested to get about your concluding remark or the chairperson remark, but also, in fact, I will take the liberty to request to kindly to reflect in a broader context of this book. So may I request to Professor Verma to kindly reflect this book. So first of all, thank you so much for inviting me here. It's been an honor to be associated with different activities that Deshghat Society has been organizing. And I must appreciate kind of I've seen Sanjay ji working so tirelessly that must be requiring a lot of energy. So I've sort of, and I've also observed the kind of perfection he demands when sort of he's organizing things.
So it's and also sort of, I must say that it's an honor to be sitting next to Neeraj. So like, I mean, certainly I'll tell you the reason why, because when I came here, I was talking with Sanjay ji, and I was asking him, I told him that he doesn't look like a retired service person. I was clear So, sometimes. yeah, and I was wondering, I told him that I really wonder that to produce such voluminous work would require a lot of commitment. If you are also, because if you're working at an office, I mean, this is like, that means you are taking, and that too, the Ministry of Culture and our culture. यही सोच रहा था कि ये खाना वाना खाते हैं 2018 में जब पहला मुझे एयरपोर्ट में हम लोग फ्लाइट में मिले, फ्लाइट के अंदर, Yes. फ्लाइट के अंदर भी चल रहा था, ये काम चल रहा Since 2016. So So our country is basically known for our culture. I mean, the kind of variety of traditions and cultures that we find in India is a huge responsibility to be the director of, and then at the top of that. You are contributing, to the already existing corpus of literature, which actually sort of constitutes our culture. I mean, that's a huge task, and hats off to your efforts, I must say. I must. So it's very inspiring that you could take time out of your busy schedule. And also, the reason why I say this is because we profess philosophy, and we are paid for that. And Neeraj ji is being paid for, is sort of, he's doing it because of his commitment. So, our profession is to profess, a particular subject. This work, however, in his case, is arising out of his personal interest and tireless pursuit that he must have followed. Now, having said that, let me sort of say a few words regarding, because that's a formal requirement of the event. Mm-hmm. So let me say a few sort of very preliminary kind of things about culture tradition. Of course, nobody would know better about this text than him. So I wouldn't, that is entirely his domain. I dare not touch that. So I'll go further back in time to sort of discuss the very origin of this thought. Basically, generally, it's believed that this whole bifurcation between Mahayana and Hinayana basically starts in several Buddhist councils that were held across different periods in time, and then very interestingly, the school of Shunyavada is basically premised upon the silence of the Buddha, and is one of the foundational texts of Mahayana, and the text name is Mūla Madhmika Karika. It's believed that Mūla Madhmika Karika systematizes the teaching that one finds in Prajnaparamita Sutras. And there's very interesting, kind of a legend regarding Prajnaparamita Sutras. It's believed that there were these sutras had some kind of an esoteric nature. So, esoteric meaning that is available to few. Not everyone can understand it. You require a particular kind of training in symbolization and so on and so forth in order to understand, what is being discussed in that text. So, according to the legend, there were these two serpents, nagas, who guarded it. It was deep buried inside in the abyss. And there is, very interestingly, there's also a similar kind of myth that you find in Greek philosophy. So there's a river Lede, and the term Aletheia, which also stands for knowledge, comes from there. So, according to this legend, these teachings are uncovered from deep beneath the earth when these serpents when they listen to Nagarjuna speak, and then they bring it out. And then they realize, okay, they were waiting for some person who would understand these teachings. And then they bring it out from there, from the abyss, so to speak, and hand it over to Nagarjuna. And they request him now to since he only had the level of intelligence to understand what is written in Prajnaparamita Sutras, they further requested him to, make it accessible
to people of that age. He talked a lot about, Neeraj talked a lot about, the sort of phases in time and how, and very importantly, he discussed, so one of the very important principles in science, which is called entropy. Entropy basically means that, things always, everything in the world goes from an ordered structure to a disordered structure. And this is inevitable. This always happens. And the other side takes a huge amount of time. So, say for example, fuel, petroleum, it took millions of years to become what it is, to become ordered in a particular fashion. We burn it just like this. So entropy doesn't take much time. But that's a different trajectory. What I want to say was that these teachings were then compiled in the form of Moolabandhimika Kalika, and it became a very huge kind of a manuscript which was being taught across the universities, so to speak, quote unquote, around that time, and a number of commentaries were written on that, and then that becomes the foundational text, where out of which three different trajectories follow, right? So one is towards it's called prasangikas, which and then there are prasangikas who do not propound any system. They say, well, we don't have any philosophical system to propound. We only undo the system of the other. If you have a system, philosophical system, we'll undo it. But we do not have any of our own system to propound. And they believe that it is very much in consonance with the idea of the Samatapad, which basically means, as you pointed out in your lecture, that everything is without an essence, is shunya at the end. And these teachings get mixed up. Let me cut the story short, actually, otherwise, because there are three different trajectories which will go from there. But since that'll require time, so let me be brief. So part of these teachings get mixed up with Tantra when these go towards Tibet. And many of the commentaries on Moolabandhimika Kalika, among which is Chandrakirti's commentary, which is the most complete commentary that we have of Moolabandhimika Kalika. We find it in Tibetan, and it's been restored from there. So there was this tantric scholar named Ratnashri, who sort of goes there in Tibet, and then these teachings become mixed up with the Tantra tradition of sort of mainland India, and then there it starts taking a very different shape. And as you noticed, and some of these things, if you read the introduction of the book, actually I received the book only yesterday, and sort of today there was another event, otherwise I couldn't have sort of stopped reading it. It's so interesting. The introduction itself is interesting, where he talks about his inspiration regarding how sort of he got the inspiration to look at this, and then some of his early experiences, and how he got the motivation to write 5 volumes, which is of course a gigantic task. So these teachings get mixed up with Tantra, and a new vehicle of within Buddhism is born, called Vajrayana, right? And this is probably the reason why you'll find a lot of similarity with Shaivism, with so many. And really, when I was talking, I also got reminded of one of the texts that I've been teaching for a few years at JNU. It's Vakyapadya. Professor Mishra probably would be more aware of that work. It's a path-breaking work in grammar. Right? So there also in the Brahma Kanda itself, Bharatari talks about Kala Shakti. And there, when you're talking about the language part, I got reminded of that. It is generally dated to 50 AD. And he talks about how words go through entropy. Right? So say, for example, when I teach this text, I generally take examples from Hindi words. So say, for example, the term jnana. As a matter of fact, coming from North India, I won't be able to even pronounce this word correctly. This is purely nasal sound, actually. Yeah. So if you ask a Malayali person, you'll get to know. Yeah.
So it's a very nasal, Jnana, something like that. The earlier part is purely nasal. Akuho Visarjanyanam Kantha. Exactly. This is, There are yeah. places. Exactly. Where we have to take. Yeah, exactly. There are places there. Right. Nabi, Kantha, Danta, Thala. So yeah, so what happens is that at times, not only the pronunciation of the word changes, also the meaning changes. So being a grammarian, Bhartari points out that through the passage of time, language changes, goes through certain kind of entropy, and the meaning of the word changes. Say, for example, the original meaning in Sanskrit of the term jnana is cognition. And today and cognition could be right or wrong. Today, the term jnana stands for something else. The term vijnana stands for basically consciousness. Today it stands for something else. Similarly, there are any number of words in Hindi, they have become abhransh as it's called. So through the passage of time, even language is also subject to the entropy. So what happens is that some of these Buddhist teachings get mixed up with several other kind of sort of teachings, including Tantra, and a new vehicle is born. And sort of there are a lot of symbolism which you would find have parallel, in Hinduism. And Abhinav Gupta is also sort of has association actually in some way. He's associated with Kalchakra tradition also. And Abhinav Gupta borrows a lot of his philosophical tools and devices from Bhartrhari, including Pratibha, the notion of Pratibha. So let me as a matter of fact, since sort of Neeraj ji has already left with you an enormous sort of like overview of this book, and I'm sure the way he has presented a very systematic kind of account of this book. Absolutely. I'm absolutely sure that all of you wouldn't be able to help yourself, not reading it. So I'm sure immediately you'll sort of you'll want to have a copy of the book for yourself. And I'm a prized this is already a prized possession. In my case, I received it yesterday. I'm very sort of happy to receive it. And I can't wait to have a look at it. So thank you so much. It's been an absolute honor to be sitting next to you and speaking about your book. So thank you so much. Before I invite a vote of thanks to Suhi Maurya, Communication Officer of this Society. Just one thing I would like to inform. We are very fortunate in a contemporary time due to the advancement of the technology. The whole deliberation was recorded through this system. And my technical person, Asutosh Kumar, I request to kindly putting these things as soon as possible, even at the earliest on YouTube. Is it possible to put in this YouTube? Yes. For two reasons. One reason, of course, it will be widely digitalized and get connected either India and the world. But the another specific reason in the particular two-day context, many of them, it was just fortunate, it was just coincidence, got commitment here and there. And someone very close to us, in fact, moving in Surat, someone is moving in Bihar, someone here. It was just coincidence. We have confirmation for 2 days ago, I think, so we would at least 30 persons. But in the morning, in that here and there. But so they have requested to us to kindly to putting this as soon as possible in YouTube. Now So we'll move, don't worry. Yes. So Nowadays, So they will Aspas will do connect. that. So they will connect with him. And may I request to kindly Suhi Maurya, in fact, can you give a vote of thanks to the August audience as well as the guests. Thank you, sir. I would like to extend my vote of thanks to our speakers and esteemed guests. Deepest gratitude to all of you for agreeing to be a part of the discussion on such an important subject. Thank you for accepting our invitation and taking out time on the weekend to be here with us today. A special thanks to Shri Neeraj Kumar ji for giving a new and fresh perspective to be considered as the Buddhist study world continues to grapple with the historical and textual mysteries of the Kalchakra Tantra. Dr. Ajay Verma for being here with us today
and agreeing to chair the session. Your thoughts have truly inspired us, sir. Sincere thanks to all the participants who've made today's discussion a wonderful and a memorable one. Once again, thank you all of you. मैं अतिथियों से आग्रह करें कृपया हमारे दफ्तर में आप हाँ, हाँ, आएं। हाँ, नीरज जी हाँ, आइए। तो देखना है